So students, today we will study the mechanism of breathing in human respiratory system. You have studied about all the respiratory organs and their that structure. Today we will see their role in the respiration. So breathing has that cyclic pattern. In this, the air passed into and out of the lungs by alternate expansion and contraction of thoracic cavity. तो जो thoracic cavity है इसका alternately contraction and relaxation होता है. At that time air enters into the lungs and then leave the lungs. This is brought about by the movement of intercostal muscles. So जो intercostal muscles होती हैं वो इसके अंदर involve होती हैं. अब intercostal muscles क्या होती हैं? So as you know, you have studied about the 12 pairs of ribs. तो ये जो ribs के बीच में जो muscles present होती हैं ये muscles होती हैं intercostal muscles. So these muscles located between the ribs. And another that muscles which are known as the diaphragm. So you can see here that this is the diaphragm. So ये जो stretch of muscle fiber which is known as the diaphragm and the intercostal muscles, they both play an important role in the breathing mechanism. So breathing mechanism is divided into two steps. The first, which is known as the inhalation, or we call it as the inspiration also. The second step, which is known as the exhalation, which is called as the expiration also. So there are two processes, inhalation and exhalation. Two processes are there. Okay. Inhalation means breathing in or inspiration. What are the changes taking place during inhalation? Let we see. इनहेलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग इन. ब्रीदिंग इन के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का. तो ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. फाइन. सो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इट बिकम्स फ्लैट. फाइन. सो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द diaphragm and the external intercostal muscles. External intercostal muscles which are present in between the ribs, they undergo contraction. और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या चेंजेस होते हैं? इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम. जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो ये जो पल्मोनरी कैविटी है लंग्स के अंदर इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो है साइमल्टेनियसली जो है एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. सेकेंड, इसके अंदर चेंज होता है कि जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये पूरे रिब केज को जो है फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट देता है. तो रिब केज जो है वो फॉरवर्ड मीन्स अपर साइड में जो है उठ जाता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. तो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है रिब केज का, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द दैट वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी. और जो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डायफ्राम जो है यहाँ आप देख रहे हो नॉर्मल कंडीशन में ये रिलैक्स कंडीशन में आर्च बनाता है, लेकिन यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट बिकम्स स्ट्रेट. Okay, so this result in the increase in the volume of thoracic cavity followed by the increase in the lungs volume. तो lungs का volume बढ़ता है और जैसे ही lungs जो है वो expand होंगे तो जो एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है. एयर प्रेशर रिड्यूस होता है किससे? जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है उससे जो है लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम होता है. एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है. तो इन दैट केस जो एयर है वो ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से एंटर करती हुई लो प्रेशर एरिया दैट इज टुवर्ड्स द लंग्स इट एंटर्स. सो एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल, देन द नेसल cavity, then pharynx, trachea, and then it goes to the lungs. So it passes through the air passage. अब exhalation के अंदर क्या होता है? Exhalation के अंदर breathing out, that we call it breathing out. It is brought about by the relaxation of intercostal muscles and diaphragm. अब इसमें diaphragm जो है वो relax हो जाएगा, arch shape हो जाएगा. जो external intercostal muscles हैं वो relax हो जाएंगी एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी.
तो जो डायफ्राम है वो ओरिजिनल पोजीशन पे होगा, जो रिब केज है इट अगेन कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा एंड रिब्स आल्सो रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लंग्स ओरिजिनल साइज पर आएंगे। तो एयर का जो प्रेशर है वो जो है इंक्रीज होगा लंग्स में देन द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर का लेस होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। सो द एयर फ्रॉम the that greater pressure area moves towards the less pressure area, that is outward movement। तो ये जो है ये outward movement होगा एयर का, फाइन। सो दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। यू कैन सी हियर कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर और रिब्स के अंदर। तो एक्सपेंशन होता है रिब्स का, इट मूव्स स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और साथ में लंग्स का जो है वॉल्यूम भी। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम तो ये स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरमसल्स का जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये सारा मिल करके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इंटर्न लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, और एयर प्रेशर डिक्रीज करते हैं। इसलिए एयर जो है वो लार्जर एरिया जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है जो कि लार्जर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होकर के इसका शेप क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगी लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फाइन। और ये सब मिल करके क्या करते हैं, जो चेस्ट कैविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं उसके वॉल्यूम को। तो लंग्स भी जो है वो उसकी कैविटी जो है वो रिड्यूस होगी एंड वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा और लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्थिति में रहेंगे, यहाँ पर लंग्स एक्सपांड होंगे। तो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर ज्यादा होगा देन द एटमॉस्फेरिक एयर, तो ये जो है लंग से जो है एयर ये आउटवर्ड मूव करेगी, फाइन। सो दीज ऑल आर द डायग्राम, दिस इज ऑल्सो द सेम डायग्राम। यहाँ पर रिब्स और स्टर्नम जो है वो रेज होकर के थोरेसिक कैविटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, एयर प्रेशर लेस हो रहा है, इसलिए एयर यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर कर रही है क्योंकि थोरेक्स का जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो बाहर जहां पर की एयर प्रेशर ज्यादा है वहां से अंदर की तरफ मूव हो रहा है, इंस्पायरेशन। सेम इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि जो रिब्स और स्टर्नम है ये ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगी तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, तो एयर का प्रेशर होगा राइज। जब एयर का प्रेशर राइज होगा देन द एटमॉस्फेरिक एयर, जहां पर की लेस प्रेशर है तो ज्यादा प्रेशर से एयर जाएगी कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ, जिसको कि हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये सारी 3 डायग्राम्स जो मैंने शो किए हैं दे आर शोइंग द एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। नेक्स्ट वी विल सी गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है लंग्स में। सो गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज टेकिंग प्लेस एट द एल्वियोलर सरफेस। यू हैव स्टडीड कि एल्वियोलाई दे आर द structure present at the terminal end of the bronchioles। so alveoli इस तरीके से broad spacious structure हैं। यहाँ पर gases का exchange कैसे होता है, so you can see this is the structure of the that alveoli and this alveoli it is surrounded by the blood vessel। तो ये क्या है, ये blood vessel है, ठीक है, blood is flowing through the blood vessel and this is the alveoli। so alveoli is being in close contact with the blood capillaries। so concentration of oxygen in lung alveoli is higher। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है alveoli के अंदर हायर है, क्यों, क्योंकि एयर के जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। तो ये एयर का जो कंसंट्रेशन है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लेस है और एल्वियोलाई के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा है। इन दिस केस ये जो डिफरेंस होगा इट कॉजेस डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द मीन्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के होगा ब्लड का, फाइन। नाउ ये डिफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा। सिंस डिफ्यूजन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द मॉलिक्यूल कंसर्न आर unequally distributed, the blood contained in the capillaries has high concentration of carbon dioxide। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं
तो यहाँ पर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है देन द कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल मूव फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू द एल्वियोलाई। तो ब्लड कैपिलरीज से जो है ये एल्वियोलाई की तरफ जो है मूव होगी, डिफ्यूज होगी। तो ये गैसियस एक्सचेंज है लंग्स के अंदर। देन वी विल सी the gaseous exchange in tissues.